The excitement of owning a spanking new Honda City was short-lived for 52-year-old Jawad Nakra. Barely 15 hours after getting it out of the showroom, his car was stolen from a busy suburban street in New Mumbai. We were just leaving the temple, and I saw that my vehicle is moving very fast, and I thought he was going to take U-turn, but it was moving so fast that then I saw that the vehicle is just gone. He is not taking U-turn. Panicked and worried, Mr. Nakra tried calling the driver several times without success. The sound was like that something has gone wrong. He immediately put his newly installed anti-theft system to the test. I tried to locate the vehicle from that system and send a message, find. So I got the message that vehicle is in Airoli. So immediately I send a message of engine off. Within 45 minutes of immobilizing the engine, Mr. Nakra, with the help of the local police, recovered his car. Thanks to a micro-technology security system or vehicle black box, which he had recently installed to counter unforeseen incidents such as these. And his foresight did pay off in this case. It is very useful because within a couple of seconds we could find where car is. Mr. Nakra is one of the lucky few who managed to see his vehicle again. Nearly 60% of cars stolen in the city are never recovered. Statistics show that last year in Mumbai, 3,593 vehicles were stolen, of which a mere 1,268 were recovered. And figures of stolen vehicles for the entire country stand at 84,675, of which less than a third, that is 25,318, were recovered, often in battered conditions. That's a recovery rate of less than 20%. With such large complexities in urban areas, it would not always be possible to prevent crimes. So it would be also people's responsibility to take care of their own belongings. For Mr. Nakra, it did seem like a responsible investment. After all, he started off a skeptic when he installed the VDB system to ensure rightful usage for his vehicles. He has now turned a believer in car security system. I do recommend that you go and get it fitted. It is affordable. Good locking systems, vehicle tracking systems. I've heard that there are many products which also give you, visual input from the car, something like a black box type of thing, which are coming up. I've also heard of devices and seen them on the internet, which can, if the driver is not bona fide, then it can, seal off the car and then give you a signal. So I think technology is a big role in preventing car thefts. So, technology can provide that added layer of defense as well as reduce crime rates. Devices like the vehicle black box automations can help cater to this consumer security need and answer this problem. In our company, we bring safety and peace of mind as the core of security. Now, security we have divided into various aspects of life. It could be your vehicle theft, it could be your home, or it need not be a theft. But still, if your driver misusing a vehicle, your own son misusing a vehicle, the security system, or that's why we call it life support system, comes to the rescue of the user or the owner of the system. Let's try and understand how Mr. Nakra managed to recover his vehicle within 45 minutes. A vehicle black box is installed inside the car, which is the central nerve of this security system. This system is connected to your car's main machinery like the engine, windows, steering, etc. This black box, in turn, is connected to your cell phone, PC or your landline telephone. Anything opens in
in your absence, if somebody intrude in your vehicle, you will get alerts stating that particular which door is open or dicky bonnet is open by the person. Secondly, by sending SMS, you can immobilize the vehicle globally. Range is global. That you can immobilize your vehicle or control your vehicle. Like all good things, Vehicle Black Box also comes with a price. The basic model starts at 9,000 rupees onwards. Besides the security aspect, another important aspect of this Vehicle Black Box technology is also being used in fleet management. The GPS is a technology in which basically vehicle mounted antenna, GPS antenna, takes the longitude and latitude position of its own through the satellite, and it gets transferred with the black box through the GSM and GPRS technology to our server, and from that server it gets posted on the maps, GIS-based maps, digitalized maps, and you can see actual movement, live movement of your vehicle. Fleet management systems is a technologically advanced method of remote vehicle tracking and monitoring. It has emerged as a widely used in developing countries, and it has had a major impact on the conscience of developing countries like India. Limousine is having more than 1,000 cars. So because of this microwave, I am able to handle the service and I am able to give the service to my client. It can be a vehicle security, it can be home security, it can be a mobile security, for which we have a ready solutions for it. The opportunities created by this Vehicle Black Box systems are immense, and it is likely to have a far-reaching impact. For the GIS solution providers like Micro Technologies, this provides the opportunity of taking the power of GIS technologies and blending it with the new systems to gain wider grounds. Security awareness has to be there so that people use it for the right purpose and not abuse it and create a paranoid, so that people always feel a fear of the unknown. So we believe security will play a very big role, but it has to play the role of a facilitator. Increased use of technology such as Vehicle Black Box can go a long way in providing insurance when it comes to your vehicles and business. We all know SMSs are a popular way of staying in touch with your loved ones, but now sending one to your car can be quite beneficial. Abhishek Chaudhary has the details. Matthew is on his way to office. He parks his car at the usual spot. But when he comes, there is something unusual. It's stolen. He immediately takes out his cell phone. No, he's not dialing the police. He is sending an SMS to his car. He can type find and the car will reply with its current location. Another SMS can shut down the engine wherever the car may be. Also, if you have access to the internet, you can spot your car on the map, get the speed which it is traveling at, and even the total distance it has done so far. So whoever stole your car has no other choice but to leave it wherever it stalls on the road. So how does one communicate with the car? Well, it's all thanks to this black box, developed by a Mumbai-based company. All you need to do is enter a valid SIM card in the box, install it in your car, and it is all ready to talk to you. This vehicle black box works on GSM technology. In your hands, if you are having the CDMA handsets even, it will work perfectly. But this box does not come cheap.
Priced at 16,500 rupees, it can make a dent in your wallet, but certainly is worth the cost. So when your car stops next time, maybe it's not the petrol, maybe it's not the mechanism, maybe you should just drive your own car. With camera person Rahul Deshpande, Abhishek Chaudhary in Mumbai for Action. Micro Technologies celebrated their achievements with their customers in the recent ceremony held in IMC Mumbai. Micro Technologies India Limited launched the Micro VBB in the year 2000. The range of the models of this product is many, with a price range of rupees 10,000 to rupees 15,000. The IT giant has launched several such products for security of vehicles, banks, homes and the likes. The products have been well received in not just the Indian consumer industry, but in 10 other countries round the globe, including the United States and Dubai. Only recently the faith of the customers in their products was reinstated when a customer at Nasik foiled the attempt of robbers who took away his Scorpio. To celebrate the achievement of the products with their customers, Micro Technologies organized a felicitation ceremony at IMC Mumbai. The event was presided over by the Managing Director of Micro Technologies, Dr. P. Shekhar, and DCP of South Mumbai, Brijesh Singh. The dignitaries felicitated the customers who saved robberies of their vehicles or homes and the likes. Abhijit Date, Amar Bijud, Jawahar Nakwa, Mahesh Date, Prakash Jain and Milind Chandak were given the Micro Users Beneficiary Awards 2007. DCP of South Mumbai, Brijesh Singh, said that the micro products are aids for the police to control criminal activities. जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखे मैंने, देखिए टेक्नोलॉजी का जब भी यूज़ होगा सिक्योरिटी में उसका फ़ायदा ही होना है, क्योंकि फिजिकली कोई चीज़ को गार्ड करने के दिन अब नहीं रहे। नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं जो 10 आदमियों को काम कर सकते हैं। आपने एक कैमरा लगा दिया तो आपको ये नहीं चिंता रहेगी कि आपका वॉचमैन सोया है कि जगह है। सो सबने टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए सिक्योरिटी के लिए। Navi Mumbai News also shared a few words with the other dignitaries on the occasion. Car security is something which is very, very important to every person who buys a car. After all, you're investing lakhs of rupees, a few thousands will go a long way in investment. The problem is when people put money on a car security, they think it's an expense. If they only shift their paradigm and say it's an investment, it's a big thing for them because you're actually protecting a car for many years. It's your own car, you're paying money for it. So I think it's a very important investment one should make in his lifetime. हर साल जो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस है वो आगे बढ़ रहे हैं। 3-4 साल पहले हर एक इंसान टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करता है, आज उनके पास मोबाइल फ़ोन है, काफ़ी टेक्नोलॉजी है, तो हर साल ये जो साइबर क्राइम है बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। With cameraman Vikrant Bele, Milind Tambe for Navi Mumbai. हाय एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ व्हील्स वेलोसिटी। मैं हूं श्वेता। हर साल ड्रंकन ड्राइविंग से एक्सीडेंट्स की तादाद बढ़ती ही जा रही है। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपने अपनी कार अपने ड्राइवर को दे दी और उसके बाद इस बात की चिंता सताती होगी कि क्या आपकी कार ठीक है या नहीं। अब एक ऐसा सिस्टम आ गया है जो आपको बताएगा कि आपका ड्राइवर क्या ठीक कंडीशन में है आपकी कार चलाने के लिए या फिर नहीं। कैसे काम करता है ये सिस्टम हम आपको बताते हैं। खाने पीने और मौज मस्ती से भरी एक पार्टी, उसके बाद घर लौटने के लिए सड़क पर फर्राटे से दौड़ती कार और फिर एक बिग बैंग। यही नतीजा होता है ड्रिंकिंग और ड्राइविंग को मिक्स करने का। और इस तरह शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की लिस्ट में बीपीओ और प्राइवेट ट्रैवल कंपनीज के कैब ड्राइवर सबसे ऊपर हैं। शराब पीकर कार चलाने वालों को रास्ते पर आने के लिए अब मदद कर सकती है ये डिवाइस, जिसे नाम दिया गया है एंटी ड्रंक डिवाइस। और इस एंटी ड्रंक डिवाइस को आसानी से किसी भी कार में लगाया जा सकता है। वो कहीं पर भी आप गाड़ी में फिट कर दो, उससे क्या होगा कि जो भी ड्राइवर है वो ड्रिंक लेता है या अल्कोहलिक चीज लेता है तो ओनर को उनकी एसएमएस आ जाती है एंड इंस्टेंट एसएमएस आ जाती है। एसएमएस आने के बाद अगर ओनर चाहे तो ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, क्योंकि हमारे पास उनके लिए इनबिल्ट टेलीफोन सिस्टम है। उनकी गाड़ी की स्पीड नोट कर सकता है, क्या झड़प से गाड़ी जा सकता है। अगर कुछ भी नहीं है तो गाड़ी को एक एसएमएस देके बंद कर सकता है। अगर आपकी कार भी ज्यादातर आपके ड्राइवर के हाथों में रहती है
तो आप ये एंटी ड्रंक डिवाइस लगाकर बेफिक्र हो सकते हैं, क्योंकि इसे लगाने के बाद अगर आपका ड्राइवर शराब पीकर ड्राइव करेगा तो आपको इसकी जानकारी अपने मोबाइल फोन पर मिल जाएगी। आप चाहे तो अपनी कार को उसी वक्त एक SMS भेजकर इमोबिलाइज कर सकते हैं, यानी इस तरह एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। There are a lot of private buses are running, बॉम्बे गुजरात, बॉम्बे गोवा, बॉम्बे हैदराबाद, उन पे भी लगा सकते हैं। थर्ड थिंग्स, द यंग जनरेशन विच इज माई मार्क, कि आज बहुत सी चीज आप पढ़ रहे हैं, 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, 24 साल के बच्चे डिस्को या पब में जाते हैं, रात को ड्रिंक लेके आते हैं, तो उनके माँ बाप को भी मालूम पड़ सकता है कि इस सिस्टम से। ये एंटी ड्रंक डिवाइस एक ऑल इन वन डिवाइस है जो एंटी थेफ्ट सिस्टम और कार ट्रैकर की तरह भी काम करती है। इसे अपनी कार में लगवाने के लिए आपको 11 से 21,000 रुपए तक कीमत चुकानी पड़ेगी। कहा जाता है कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग डोंट मिक्स, और ये यंत्र यही सुनिश्चित करता है। और अगर आपको लग रहा हो कि इस यंत्र की कीमत है कुछ ज्यादा, तो याद रखें, जान है तो जान। राज्य गृह मंत्रालय तथा नवी मुंबई माइक्रो टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के संयुक्त माध्यम से वाहन सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री RR पाटिल के हाथों संपन्न हुआ। इस वाहन सुरक्षा सप्ताह का आयोजन गृह मंत्री RR पाटिल के हाथों किया गया, जहां पर उनके साथ मुंबई के पुलिस आयुक्त DN जाधव, संयुक्त आयुक्त S माथुर, उपायुक्त अरुण पटनायक, उपायुक्त मीरा बोरवनकर एवं माइक्रो टेक्नोलॉजी कंपनी के निदेशक AR काले भी उपस्थित थे। इस सप्ताह का आयोजन इसलिए किया गया था क्योंकि शहर में बढ़ते वाहन चोरियों का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। कुछ उपस्थित मान्यवरों ने इस और भी ध्यान आकर्षित कराया कि कुछ वाहन चोरियों की घटनाओं में चुराई गई गाड़ियों का इस्तेमाल आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए भी किया जाता है। गेल्या 20 वर्षाचा आढावा घेतला तर मुंबई मधल्या रस्त्यांची दुरी आणि लांबी 2.4% वाढली, तर वाहनं 4% वाढली। रस्त्यांच्या तुलनेमध्ये दिवसेदिवस वाहनं अधिक वाढत निघालेली आहेत। आज सुरक्षितता सप्ताह साजरा करत असताना एक तर वाहनं सुरक्षित राहिली पाहिजेत आणि वाहनांच्या पासून नागरिकांना सुरक्षितता मिळाली पाहिजे। मुंबई सारख्या शहरामध्ये 3,500 वाहनं दरवर्षी चोरीला जात आहेत, ही गोष्ट निश्चित योग्य नाही। पण प्रत्येक वाहनासाठी आपण एक सुरक्षा रक्षक नेमू सुद्धा शकत नाही, कारण लाखोंच्या संख्येने वाहनं असताना त्यांच्या सुरक्षेसाठी इतके लोक नेमणं हे कुठल्याही शासनाला शक्य नाही। अशा परिस्थितीमध्ये आपल्या आयुक्तांनी सांगितलेल्या पद्धतीनं आधुनिक उपकरणांचा वापर केला पाहिजे, ज्यामुळं वाहनाला कुणी टच केला, वाहन सोडण्याचा कुणी प्रयत्न केला तर सिग्नल्स मिळतील आणि चोऱ्या रोखल्या जाऊ शकतील। मुंबई पुलिस आयुक्त DN जाधव ने भी वाहन चोरी की समस्या को काफी गंभीर माना। गृह मंत्री RR पाटिल तथा मुंबई के पुलिस आयुक्त DN जाधव दोनों ही माइक्रो टेक्नोलॉजी द्वारा दिखाए गए सुरक्षा उपकरण देखकर प्रभावित हो गए। इस उपकरण के सहारे केवल गाड़ी को चोरी होने से ही नहीं बचाया जाता, बल्कि इन चोरों तक पहुंचने के लिए पुलिस को सहायता भी मिलती है। आखिर टेक्नोलॉजी है और वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, मैंने भी देखी है। आजकल जो उपकरण संशोधन हुए हैं उनका बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। वाहन सेफ्टी सप्ताह पुलिस की तरफ मनाया जा रहा है, हम गंभीर मानते हैं इसलिए सप्ताह मनाया जा रहा है। मुंबई के पुलिस आयुक्त DN जाधव ने भी बढ़ते गाड़ियों के चोरियों पर चिंता जताते हुए कहा, 3,500 वाहन यदि साल में जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या है। उसकी कॉस्ट, उसका जो मेंटल ट्रॉमा है, उसका जो क्रिमिनल्स को बढ़ावा मिलता है, क्राइम को बढ़ावा मिलता है, तो इम्पोर्टेंस है इसका। अपने संभाषण दौरान मुंबई के पुलिस आयुक्त DN जाधव ने माइक्रोटेक जैसे टेक्नोलॉजी के सुरक्षा संसाधनों को वाहन चोरी को नियंत्रित करने में काफी महत्वपूर्ण माना। साध्या टेक्नॉलॉजीने प्रिव्हेंट होणार आहे, पण त्यामध्ये जरा कॅज्युअलनेस आलेला आहे। इचिंग वाहनावरती इचिंग दिल्लीत खूप पूर्वी सुरू झालेलं आहे, पण परत आपल्या इथं ते काही झालं नाही। मध्ये
हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट काही कारणाने लिटिगेशनमुळे कोर्टात अडकलेलं होतं सुप्रीम कोर्टापर्यंत आणि साध्या ज्या क्लॅम्प्स किंवा इतर काही ज्या प्रिव्हेंटिव्ह आहेत अँटी थेफ्ट अलार्म्स आहेत काय इलेक्ट्रॉनिक की गाडीला कुणी हात लावला तरी आवाज सुरू होतो वगैरे असल्या साध्या गोष्टी ती लाखो रुपयाची गाडी घेतल्यानंतर थोड्याशा सिक्युरिटीकडे आपण निग्लेक्ट करतो त्यामुळे चोरांचं फावतं. त्या चोरीमध्ये नुसती चोरीच नाही, या चोरीची वाहनं रॉबरी करण्यासाठी किंवा टेररिस्ट क्राईम करण्यासाठी वापरले जातात. हा एक अँगल लक्षात ठेवला तर आपल्याला फक्त वाहन आपल्याला परवडते चोरीला गेलं म्हणून किंवा इन्शुरन्स कंपन्या पैसे भरतात म्हणून चालते असं नाही, तर त्या वाहनांचा सिरियस क्राईमच्या वेळेला पत्ता लागू नये म्हणून चोरीच्या वाहनातूनच मोठे मोठे रॉबरीज, मोठे गुन्हे, बँक डकैतीज, इवन बॉम्ब ब्लास्टच्या सारख्या अशी वाहनं वापरली जातात. नवी मुंबई समाचार से बात करते हुए माइक्रो टेक्नोलॉजी के निर्देशक AR काले का कहना था, माइक्रो टेक्नोलॉजी जैसे आप जानते हैं उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है. इट इज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर. तो इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रो व्हीकल बॉक्स, माइक्रो व्हीकल ब्लैक बॉक्स. दिस बॉक्स can identify where your transport is there. If there is a theft, immediately it will notify the owner or the respective authorities that the theft has taken place or any other unauthorized representative is driving the car. Not only that, it will give you the indication where your car has been parked, how your car is running. All this information you will get on your mobile. At the same time, if you are given a command to your mobile, this information will be given to all other security authorities also, whomsoever you demand to do that. इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से मुंबई एवं उसके उपनगरों में लगातार वाहन चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, वैसी स्थिति में अगर माइक्रोटेक जैसी तकनीक का इस्तेमाल अपने वाहनों में किया जाए तो निश्चित तौर पर वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने में काफी मदद मिलेगी. और शायद इसी कारण राज्य के गृह मंत्री तथा मुंबई पुलिस भी इस सुरक्षा उपकरण को देखकर प्रभावित हो गई. नमस्कार दर्शकों, मैं आकाश ओले नासिक समाचार में आपका स्वागत करते हुए सुर्खियों के बाद अब एक नजर खबरों पर. इंदिरा नगर इलाके से स्कॉर्पियो की चोरी होने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने सिने स्टाइल तरीके से उसका पीछा कर चोरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया. इसमें पुलिस को स्कॉर्पियो में लगाए गए चोरी प्रतिबंधक आधुनिक यंत्रणा की बड़ी मदद हुई है. इंदिरा नगर इलाके के गणेश अपार्टमेंट में रहने वाले अभिजीत दाते का टूरिस्ट का व्यवसाय है. रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात चोरों ने उनकी MH15E6572 क्रमांक की स्कॉर्पियो को चोरी करने की कोशिश की. अभिजीत दाते ने उस वाहन में चोरी प्रतिबंधक व्हीकल स्ट्रेकर या आधुनिक यंत्रणा बिठाने की वजह से स्कॉर्पियो कहा जा रही है, इसके बारे में उन्हें सूचना मिली. अभिजीत दाते ने इस संदर्भ में तुरंत अंबड़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की. पुलिस ने बिल्कुल सिने स्टाइल तरीके से उनका पीछा किया और स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में लिया. इसके बारे में अंबड़ पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश पाटील ने अधिक जानकारी दी. अर्धा ते पाऊण तास लोकेशन फक्त विंचूर शिवार दाखवत असल्याने आम्ही भांबवल्या गेलो की गाडी गेली कुठं आणि पूर्ण अधिकारी रोडवर होतो. परंतु त्या दरम्यान ही गाडी पाठ किनारी नंबर प्लेट बदलत होती. आम्ही विंचूर नाक्यावर मी थांबलो आणि कर्मचाऱ्यांना सूचना देत असताच या गाडीने आमच्या गाडीला जोरात आमच्या अंगावर येऊन त्या दरम्यान आम्ही बाजूला झालो आणि ताबडतोब येवला रोडला पळाली. त्या दरम्यान मी वायरलेसने येवला रोडला कळवलं. त्यावेळी PI आकडे, API करंजे आणि त्यांचे अधिकारी रोडवर गाड्या आडव्या लावून उभे होते. ही गाडी त्या ठिकाणी एक 15-20 फूट अंतरावर जाताच गाडीचा नंबर त्यांनी बदललेला आम्ही त्यांना कळवलं तर 9937. त्यांना बघताच या गाडीने परत रिवर्स झाले आणि मग त्या रिवर्स होता त्यांनी अनिल आकडे यांनी मला कळवलं. त्या दरम्यान मी माझी गाडी आडवी घातली. रिव्हॉल्वर अधिक 2 बंदूक आम्ही रोडवर घेऊन उभा राहिलो आणि गाडी येतात फायर केल्यामुळे ड्रायव्हरने गाडी एकदम नाल्यात शेतामध्ये घुसवली आणि शेतात घुसवल्यामुळे उसाच्या शेतात मक्याचं शेत होतं. 4 आरोपी फरार झाले. अशा रीतीने या ज्या मालकाने अभिजीत दाते यांनी अतिशय चांगली सिस्टीम बसवल्यामुळे व पोलिसांनी त्यांना वेळीच मदत केल्यामुळे सदरची स्कॉर्पिओ गाडी चोरून नेण्यामध्ये आरोपींना अपयश आलेले आहे. मी नाशिक शहरातील सर्व स्कॉर्पिओ मालकांना विनंती करेल की मित्रांनो, अभिजीत दातेंची तुम्ही भेट घ्या आणि ज्या नव्या गाड्या असतील त्यामध्ये ही 16. तो वही अभिजीत दाते ने वाहन में बिठाए गए आधुनिक यंत्रणा के बारे में जानकारी दी. मी डिसेंबर 2006 मध्ये घेतली आणि तिच्यामध्ये एक मायक्रो VBB म्हणून सॉफ्टवेअर बसवलेलं आहे. आज पहाटे 3 वाजता मला पहिला मेसेज आला की माझी गाडी ओपन झाली आहे. म्हणून मी ताबडतोब गाडी बहिणीच्या इथे लावलेली असते. मी ताबडतोब उठलो आणि तिथं पाहिलं गाडी नाही आहे. मी ताबडतोब 100 नंबरला कंट्रोल रूमला फोन केला.
कंट्रोल रूमवरनं ताबडतोब एक 5 मिनिटात मला पाटील साहेबांकडनं फोन आला की मी कुठं आहे. मी पाटील साहेबांना सांगितलं मी इथंच माझ्या गाडीच्या लोकेशनजवळ आहे जिथून गाडी गेली. तर पाटील साहेब आणि त्यांची पूर्ण टीम ही 5 ते 10 मिनिटात माझ्याजवळ आली. त्यांनी स्वतः मला गाडीत बसवलं. आम्ही सगळे मिळून माझ्या मोबाईलच्या सिस्टीमवरनं गाडीचं लोकेशन शोधत सगळेजण आम्ही औरंगाबादकडे निघालो. पण आम्हाला निफाडनंतर कळालं की गाडी विंचूरमध्येच कुठेतरी आहे. तर विंचूरमध्ये गेल्यावर जिथं विंचूर पोलीस चौकीचे बॅरिकेड्स लावलेले होते तिथे आम्ही थांबलो. आमच्या मागून ती गाडी आली, ही गाडी, आणि आम्ही सगळेजण गाडीला आडवे झालो तरी ते निघून गेले. आम्ही ताबडतोब या गाडीत बसलो, तिचा पाठलाग चालू केला. तोपर्यंत सगळ्या कंट्रोल रूमला फोन गेलेले होते, मेसेज गेलेले होते. त्यामुळे सगळीकडनं पोलीस पार्टी आडवी झालेली होती. त्यामुळं आज चोरांचं मनसुबे उधळले गेले. मला साहेबांनी राऊंड फायर केले, त्यामुळे चोरांचे पूर्ण हे झालं. आणि तशीच माझ्या सिस्टीममुळे आणि सगळ्या पोलीस पार्टीच्या आणि पाटील साहेबांच्या तात्काळ एक्शन. चोरों ने ओढ़ा चुंगी नाका पर रसीद फाड़ने से उन तक पहुंचना और भी आसान हो गया, लेकिन चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। नीलेश तांबड़े, नासिक समाचार, नासिक।